Hello everyone, welcome back to our channel. In this series, we are discussing the previous year question of Sainik School entrance exam. In today's video, we will be discussing the English section. If you want to see the GK section, the link is in the description box. Do check out. For more such videos, stay tuned. Let's start. The first question is select the incorrect option. Mouse, mice, sheep, sheeps, child, children, woman, women. As you can see, these are singular plural. But the incorrect option is sheep, sheeps. Sheep is a word which remain sheep in the plural form as well. That means that sheeps in itself is not a word. Sheep, sheeps. Singular plural दोनों में ही sheep रहता है. More such example is deer. There is no such word called deers. Deers नहीं होता, sheeps नहीं होता. Sheep, deer. Singular में भी, plural में भी. ठीक है? Let's move to the next question. Identify the question tag in the following sentence. Question tag basically एक question phrase होता है, एक small phrase जिसको हम एक sentence के बाद use करते हैं to confirm something. जैसे she sings very well. In itself is a complete sentence, लेकिन इसके बाद हमने एक छोटा सा phrase add किया. Doesn't she? अच्छा sing नहीं करती क्या? जैसे I like coffee. जैसे you like coffee, don't you? तो इस सेंटेंस में doesn't she is the question tag. जैसे कोई भी चीज हो रही होती है तो आप उसे कंफर्म करने के लिए द वेदर सीम्स नाइस डजंट इजंट इट लाइक द वेदर इज वेरी नाइस टुडे इजंट इट. तो कोई चीज को कंफर्म करने के लिए हम दोबारा एक छोटा सा क्वेश्चन टैग यूज करते हैं, एक फ्रेज यूज करते हैं जिसे क्वेश्चन टैग बोलते हैं. सो इन दिस सेंटेंस doesn't she is the question tag. Not only doesn't, the complete phrase is called the question tag. So doesn't she is the question tag. Next question. Choose the option that does not come under gender. Gender, masculine, feminine. Neuter is also a gender which is not masculine, not feminine. So singular is not gender. These are singular plural. Change in numbers which you do. जैसे हमने first question में किया था. Next question is identify the type of sentence. Come and do your duty. So types of sentences हम देखते हैं. Assertive is basically a normal positive sentence. Okay. Interrogative is a question statement. जब आप किसी से क्वेश्चन पूछते हो how are you जैसे, तो वो एक interrogative statement है. ठीक है. Imperative और exclamatory. Exclamatory होता है जब लास्ट में स्पेसिफिकली एक्सक्लेमेशन मार्क आए, जैसे हुर्रे, अलास, ये सब जो वर्ड्स हैं. इम्पेरेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं वो यूजुअली कमांड करने के लिए, किसी को आप कुछ कमांड कर रहे हो, जैसे इसी स्टेटमेंट में कम एंड डू योर ड्यूटी, आप किसी को बता रहे हो ना कि आप आओ और अपनी ड्यूटी कंप्लीट करो, तो कमांड कर रहे हो ना. या फिर अगर आप रिक्वेस्ट भी कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो इम्पेरेटिव स्टेटमेंट. ओके. इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो जैसे. तो ये सभी टाइप्स के जब भी सेंटेंसेस होंगे जिनमें कमांड, रिक्वेस्ट, इंस्ट्रक्शन ऐसा कुछ हो, तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. Laughter is the best medicine. Identify the kind of noun for laughter. So noun हम देखते हैं. Noun naming word. आप सबको पता होगा. Noun is naming words. Proper noun होती है जब हम specifically किसी particular चीज की बात करें. ठीक है. Common जब हम किसी category की बात करें. Abstract noun वो noun होती है जो feel करी जाती है, जिनको touch नहीं कर सकते, जिनको जो सिर्फ feel करी जाती है, कोई feeling होती है, जैसे थॉट्स होते हैं या आइडियाज होते हैं, वो सभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में होते हैं. सो लाफ्टर इज ऑल्सो एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. कलेक्टिव नाउन ग्रुप. तब हम किसी का ग्रुप बताते हैं तो वो कलेक्टिव नाउन होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द करेक्ट सेंटेंस वेयर इनफ हैज बीन यूज्ड एज एन एडवर्ब. व्हाट इज एन एडवर्ब नाउ? एडवर्ब बेसिकली अगर हम हिंदी में बताएं तो क्रिया विशेषण, जो वर्ब किसी वर्ब को
या फॉर दैट मैटर किसी एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करे, उसकी विशेषता बताए, वो होती है एडवर्ब। अब हम सेंटेंसेस देखते हैं वन बाय वन। देयर इज इनफ इंक इन द पोट, ही वॉज काइंड इनफ टू हेल्प मी, शी हैज टाइम इनफ टू बाय द शूज, शी इज इनफ ब्यूटीफुल टू टेम्प्ट मी। फर्स्ट सेंटेंस में इनफ जो है वो इंक को क्वालिफाई कर रहा है, मतलब इंक के बारे में बता रहा है, पर इंक जो है वो नाउन है, तो नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है। तो इस सेंटेंस में इनफ एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव है। शी हैज टाइम इनफ टू बाय द शूज, टाइम इनफ ऐसा नहीं होता है, शी हैज इनफ टाइम होता है। शी इज इनफ ब्यूटीफुल ये भी नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन होगा शी ही वाज काइंड इनफ। काइंड इन इटसेल्फ इज एन एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को क्वालिफाई कौन करता है? एडवर्ब करता है। तो ही वाज काइंड इनफ टू हेल्प मी। Next question. From the following, select the most appropriate option to fill in the blank. A dash of ships. Ships का हमेशा fleet होता है। Fleet of ships, जब एक group of ships इकट्ठे चल रहे होते हैं ना, तो वो fleet होता है। Brood जो होता है वो young ones, जैसे किसी भी animal या bird के young ones होते हैं ना, उनका group होता है, उसे बोलते हैं brood। ठीक है, fleet of ships। Next question. Select the sentence with correct order of words. बेसिकली रीअरेंज करके हम एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। देखो, कॉल ईच अदर विद माइस रिपीटिंग कॉल्स, कुछ सेंटेंस बन रहा है, कुछ सेंस बन रहा है इसका। द माइस कॉल ईच अदर विद रिपीटिंग कॉल्स, द माइस कॉल रिपीटिंग कॉल्स विद ईच अदर, द माइस रिपीटिंग कॉल्स विद ईच अदर। किसी का कोई सेंस बन रहा है? सिर्फ सेकंड ऑप्शन का बन रहा है कि जो माइस है वो एक दूसरे को बुलाते हैं। रिपीटिंग कॉल्स, आवाज, रिपीटिंग कॉल्स मतलब बार बार बुलाते हैं। कॉल्स मतलब इसका सेंस हो रहा है कि आवाज लगा के, बार बार एक दूसरे को आवाज लगा के वो बुलाते हैं। माइस कॉल ईच अदर, वो बुलाते हैं विद रिपीटिंग कॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। डोंट डिस्टर्ब मी, आई डैश माई वर्क। डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम डूइंग माई वर्क। वेरी सिंपल हूँ। डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम डूइंग माई वर्क। आइडेंटिफाई द एडवर्ब। एडवर्ब जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा, जो एडजेक्टिव की विशेषता बताए या वर्ब की विशेषता बताए। शी रेड द आंसर ट्वाइस, उसने आंसर पढ़ा, पर ट्वाइस पढ़ा, क्वांटिटी बताई ना, तो ट्वाइस इज द आंसर। चूज द ऑप्शन दैट इज ऑपोजिट ऑफ ब्रेव। ब्रेव कॉवर्ड, ओके। बहादुर कायर। Choose the word nearest in the meaning to the underlined word. She requested him to drop her home. Request करिए किसी चीज के लिए, ऑर्डर तो नहीं किया, इंस्ट्रक्ट नहीं किया, फोर्स नहीं किया, पोलाइटली रिक्वेस्ट करिए ना, तो आस्क पोलाइटली। द बेबी वॉज डैश इन द रूम, बेबी वॉज स्लीप नहीं, बेबी वॉज स्लीपिंग। विल तो होगा ही नहीं क्योंकि वॉज दिया हुआ है पास्ट टेंस में। द बेबी वॉज स्लीपिंग इन द रूम। कंप्लीट द इडियम। यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड, ये एक इडियम होती है, हिट द नेल ऑन द हेड, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट चीज बोल देना या एग्जैक्ट चीज कह देना जो हो रही होती है किसी भी टाइम पे। ठीक है, हिट द नेल ऑन द हेड इज एन इडियम। करेक्ट स्पेलिंग, सिंसियरिटी, सिंसियरिटी, दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग। ये तीनों गलत है। चूज द करेक्ट प्रोनाउन। डैश इज स्टैंडिंग एट द गेट, हु इज स्टैंडिंग एट द गेट? वेरी इजी आई गेस, यस और नो? Who is standing at the gate? Appropriate article. They are going to dash metro station. एन तो होगा ही नहीं, एन तो वॉल साउंड के लिए होता है। ए और द में से भी आप देखो कि जब वो जा रहे हैं किसी मेट्रो स्टेशन पे, तो उन्हें पता होगा ना कि वो कहाँ जा रहे हैं, किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे ही जा रहे होंगे, तो दे आर गोइंग टू द मेट्रो स्टेशन। ऐसे ही कहीं भी तो नहीं जा रहे होंगे, किसी पर्टिकुलर जगह ही जा रहे होंगे। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो नाउन की विशेषता बताए, तो हीज, सो, टू, ऑनेस्ट, इसमें से क्या एडजेक्टिव है? ऑनेस्ट, ऑनेस्टी बता रहा है ना।
Choose the correct preposition to complete the following sentence. The restaurant is dash the school. Restaurant up स्कूल के ऊपर थोड़ी होगा रेस्टोरेंट. बिटवीन बिटवीन तब होता है तब दो चीजों के बीच की बात हो, तो दो चीज तो है ही नहीं. इज बिटवीन द स्कूल थोड़ी होगा. अलोंग साथ में है रेस्टोरेंट और स्कूल. इज बिहाइंड द स्कूल. द रेस्टोरेंट इज बिहाइंड द स्कूल. ये देखो, they left dash shoes on the floor as dash was no space on the shoe rack. There और there, ये जो they are है ये तो possession बता रहा है. This is a short form of they are. ठीक है, ये वाला जो there है ये बताता है उनका. ये जो there है वो पोजीशन बताता है कि वहां. They left their shoes, उन्होंने अपने शूज कहीं रखे होंगे ना, तो they left their shoes, तो यहाँ पे तो there आएगा. ये ऑप्शन और ये ऑप्शन में they left their shoes on the floor as वहां पे कोई स्पेस नहीं था, तो ये वाला there, they left their shoes as there was no space. सेकंड ऑप्शन their shoes, खुद के उनके शूज, क्योंकि वहां स्पेस नहीं था. ओके, दिस इज अ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन यूजुअली जो स्टूडेंट्स करते हैं वो पहले क्वेश्चंस पढ़ने स्टार्ट कर देते हैं एंड देन दे रीड द पैसेज. बट ट्रस्ट मी, आपके पास टाइम है, ऐसा कोई टाइम नहीं भागा जा रहा. 2 मिनट निकाल के यू फर्स्ट रीड द पैसेज क्लियरली, अंडरस्टैंड करो पैसेज को, उसके बाद आपको आंसर खुद ब खुद आ जाएंगे. ज्यादा टाइम देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. ट्राई इट विद मी. एक बार के लिए पैसेज हम साथ साथ पढ़ते हैं. रीड इट विद मी ओनली, और आपको आंसर पैसेज देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. यू विल गेट द आंसर्स. एंड ये मतलब बहुत 5 क्वेश्चन होंगे तो 5 के 5 आप कर सकते हो अगर आप ध्यान से पैसेज पढ़ रहे हो तो. ठीक है, तो चलो रीड करते हैं. इफ यू वांट टू सेंड अ लेटर बाय पोस्ट टुडे, you have to paste a stamp on the envelope. But long ago there were no stamps. People who wanted to send a letter would fold it and stick it with the wax. Then the post office would send the letter and the person who got it would have to pay for receiving the letter. The first stamp was printed in England. It was black and had a picture of Queen Victoria on it. It cost 1 penny, the British paise. That is why it is called the penny black. The hobby of collecting stamps is known as philately. Stamps have been brought out in many shapes and sizes. Some stamps are very valuable and can sell for a lot of money. ओके, पैसेज पढ़ लिया, समझ आ गया कि हाँ स्टैम्प्स के बारे में बात हो रही है, बता रहे फर्स्ट स्टैम्प कहाँ हुई थी, कैसे क्या था. अभी क्वेश्चन देखते हैं वन बाय वन. चूज द फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट स्टैम्प वॉज प्रिंटेड इन, अभी अभी हमने पढ़ा था ना, फर्स्ट स्टैम्प वॉज प्रिंटेड इन इंग्लैंड. ये देखो क्वेश्चन पैराग्राफ में देखो, द फर्स्ट स्टैम्प वॉज प्रिंटेड इन इंग्लैंड. ओके, अगर आपने पैराग्राफ अच्छे से पढ़ा है तो आपको याद आ जाएगा हाँ ये तो पढ़ा था. अगर एग्जैक्ट आंसर नहीं याद आएगा तो कम से कम ध्यान आ जाएगा कि हाँ इस जगह पे ये लाइन थी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. द फर्स्ट स्टैम्प हैड अ पिक्चर ऑफ क्वीन विक्टोरिया. जहां पे इंग्लैंड की बात हो रही थी ना, वहीं पे क्वीन विक्टोरिया की बात भी थी. ये देखो, इट वॉज ब्लैक एंड हैड अ पिक्चर ऑफ क्वीन विक्टोरिया. यस और नो? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स, सबसे लास्ट में ये लाइन थी, लास्ट सेकंड पे. ये देखो, द हॉबी ऑफ कलेक्टिंग स्टैम्प्स इज कॉल्ड फिलैटली. हो गया? आई गेस बिल्कुल तीनों क्वेश्चन आसान थे, है ना? चलो नेक्स्ट देखते हैं. अभी अब ये पार्ट ऑफ स्पीच आपको बताना है. इट वॉज ब्लैक एंड हैड अ पिक्चर ऑफ क्वीन विक्टोरिया. तो ये उसको उसकी विशेषता बता रहा है ना, उसको क्वालिफाई कर रहा है कि जो वो स्टैम्प थी वो ब्लैक इन कलर थी, तो इट वॉज ब्लैक. एडजेक्टिव. नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन. चूज द ऑपोजिट ऑफ सेंड. सेंड मतलब भेजना, उसका ऑपोजिट क्या होगा? रिसीव, मिलना कोई चीज. ओके, सो दिस वाज इट. आपके 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए. आई होप आपको समझ आए हो. फॉर एनी queries, any feedback, do let us know in the comment section, and for more such videos subscribe to our channel. Thank you.